Again and again, it keeps happening in the church. Some girl will come and say, "I like this guy." You look at the guy. His life is filled with debts, beats his parents, has no honor for anybody, doesn't come to church. "No, pastor, but I love him." "Sister, he's going to beat you tomorrow." "No, pastor, I'll pray, I'll fast and pray and change him." And then comes, after some months, with a swollen jaw. We warned her, but she didn't hear. And I cannot tell you, you're laughing, but this is the truth. And it breaks my heart, because had it been my daughter, I would have cried all my life. कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि कोई लड़की आके बोलती है, "पास्टर, मुझसे प्रभु ने उसके लिए बात किया, मुझे पसंद है, मैं उसे प्यार करती हूँ", और उस लड़के का जीवन खराब है, माँ बाप को पीटता है, कर्जे में है, फिर भी वो शादी करती है और फिर कुछ समय बाद मार खा के आती है। Why does that happen? क्यों होता है ये? Because we don't keep God's opinion above our opinion. क्योंकि हम परमेश्वर की राय अपनी राय से ऊपर नहीं रखते। We don't care about what God has to say. हम परवाह नहीं करते प्रभु क्या कहता है। And this keeps happening again and again. And I होते see रहता है। मैं देखता हूँ लोगों को eating the fruit of their bad choices and then blaming God for it and then crying and then saying, "Why did God do that for me?" अपने खराब निर्णयों का फल खाते हैं, फिर परमेश्वर को कोसते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। And in the end, और अंत में I said, "Pastor Samarth, you take the marriage department." He has a pastoral heart. He has a pastoral call. Are you getting what I'm saying? You are forgiven of your sins. आपके पापों को क्षमा किया जा चुका But है। you will still have to eat the consequence of your choices that you make on this earth. पर फिर भी आपके चुनावों का फल आपको खाना पड़ेगा So पृथ्वी पर। don't make stupid choices. बेवकूफ़ी भरे चुनाव ना लें। Choices sometimes. I remember this sister and मुझे एक she बहन herself याद है। was telling me, और वो खुद मुझसे कह रही थी, loves the Lord, प्रभु से प्यार करती थी, goes and prays for people. जाति लोगों के लिए प्रार्थना करती And her husband used to call prostitutes and make these dirty movies in a camera in their house. और पीछे से पति वैश्याओं को बुला करके गंदी मूवीज बनाया करता था उनके साथ। She is living for Lord. And वो then प्रभु one के day लिए जी she रही है। cried before me and she told me, "You know, Pastor, I disobeyed God." फिर एक दिन वो मुझसे रो के कहने लगी, "पता है पास्टर, मैंने प्रभु की नहीं मानी थी आज्ञा। I had gone to a meeting मैं एक सभा में गई थी, and the preacher was preaching. वहाँ प्रचारक प्रचार And कर she रहे said, थे। I was seated on that side. उन्होंने कहा मैं वहाँ पीछे बैठी And हूँ। as I was listening, और जब मैं सुन I रही थी, saw somebody standing on my right. मैंने देखा मेरे दाहिने हाथ कोई खड़ा है। She said, as I turned around, it was the Lord Jesus. उन्होंने कहा जैसे मैंने मुड़ के देखा प्रभु यीशु And the खड़े थे। moment she is seeing the Lord, this preacher from here starts saying, "There is a woman here. You are seeing Lord Jesus, and Lord tells you, don't marry that man. He will destroy your life." और जैसे ही उन्होंने यीशु को मुड़ के यीशु को देखा, प्रचारक ने बोला, यहाँ पर एक महिला है जो प्रभु यीशु को इस समय देख रही है, प्रभु कह रहा है उस आदमी से शादी मत करना, वो तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा। She said, "I yet went and married that man." उन्होंने कहा मैंने फिर भी जाके उस आदमी से शादी करी। He's separated today, आज वो अलग है but हमसे, all her married life, पर she जिंदगी lived a भर miserable life. एक खराब जीवन जिया। Not because God doesn't love her, इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता, because she lacked the fear of the Lord. लेकिन इसलिए कि प्रभु के भय की कमी थी। Are you getting what I'm saying, आप church? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Please don't do things which will hurt you all your life. वो मत करना जिससे आपको जीवन भर नुकसान हो। Because the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. क्योंकि प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है। If there are any girls here अगर यहाँ कोई लड़कियां हैं who are trying to date a boy who is not saved and say, "My prayer will save him," let me tell you what is going to happen after your marriage. जो किसी लड़के को Let me डेट कर save रही your हैं, heartache. जो किसी लड़के को डेट कर रही हैं जिस लड़के ने अभी तक उद्धार नहीं पाया और आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना उसको बदल देगी, मैं आपका दिल का दर्द बचाना चाहता हूँ। After seeing so many lives destroyed, don't destroy your life. इतनी जिंदगी को नाश होते देखने के बाद मैं कहूँगा अपनी जिंदगी नाश मत करना। I plead you as a father, मैं एक पिता के रूप में आपसे विनती करता हूँ, don't destroy your life. अपनी जिंदगी नाश मत करना। Don't destroy your life. अपनी जिंदगी नाश मत You करना। can have a if you wait for the अगर- right person, सही व्यक्ति के लिए इंतजार you करोगे will have heaven on earth marriage. Your married life would be so beautiful. तो पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग जैसा जीवन जियोगी, आपकी शादी इतनी खूबसूरत होगी। Your heavenly Father is for you. He's not against you. आपका स्वर्गीय पिता आप ही की तरफ है, आपके खिलाफ नहीं है।
If you are in a wrong relationship and you know you are in a wrong relationship, I pray that the spirit of the fear of the Lord will empower you to sever the ties with the wrong person and live a holy life from अगर today. आप एक गलत रिश्ते में हो तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का भय का आत्मा आपके जीवन पर उतर आए और आपकी मदद करे उस रिश्ते को काटने के लिए, अलग करने के लिए। Delete that number, block that number. उस नंबर को डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। Guys, I'm telling you, मैं बता रहा हूँ, I can give you a nice sermon and go home. अच्छा प्रचार करके मैं Already घर in जा सकता fasting, I'm feeling so weak. हूं। मैं पहले उपवास कर रहा हूँ, कमजोर फील कर रहा हूँ। I can preach a nice 30-minute sermon and go home. अच्छा 30 मिनट का प्रचार करके घर जा सकता It is my heart. No daughter of this house has to go through that heartbreak. हूँ। पर ये मेरा दिल है कि इस घर की कोई भी बेटी उस दिल के दर्द से ना गुजरे। Amen. If you can wait, God will give you a godly life partner because he fears God. He's gonna walk in integrity. He's gonna love and honor you. अगर आप वेट करोगे तो प्रभु आपको एक ऐसा जीवन साथी देगा जो उसका भय मानता है, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता है, वो खराई से आपके साथ जिएगा। I don't know why Holy Spirit gave me this word today. मुझे पता नहीं प्रभु की आत्मा ने ये But वचन मुझे क्यों I दिया। know right now the Lord is speaking to so many people. पर मैं जानता हूँ इस समय प्रभु बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। Don't destroy your life. अपनी जिंदगी नाश मत करना, Don't destroy your life. अपनी जिंदगी नाश मत करना। Everything that flashes is not gold. सब कुछ जो चमकीला होता है वो सोना नहीं होता। कई बारी थूक भी चमकता है धूप में। वाह, Okay, that was a bad analogy, but that's okay. That's the only thing I could come up with. But I'm telling you the truth. पर मैं सच कह रहा हूँ। See the pattern. How does he treat his mom and dad? पैटर्न देखना कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा If he व्यवहार doesn't करता है। honor his mom and dad, अगर वो अपने माँ बाप का आदर नहीं करता forget it that he's going to honor you ever. तो ये भूल ही जाओ कि वो कभी आपका भी आदर करेगा। If he's abusive अगर वो गाली गलौज करता है before marriage, शादी से पहले हाथ be ready for swollen face. तो तैयार हो जाओ शादी के बाद सूजे हुए मुंह के लिए। I'm telling you the truth. बता रहा हूँ। बस मुंह से कड़वाया, दिल से बहुत अच्छा है। Amen. Wisdom. The fear of the Lord brings wisdom. प्रभु का भय बुद्धि लाता है। I pray आंखों से आपके वो पट्टी हट जाए और आप देख सको। That veil would be taken off of your eyes and you would see. I'm telling you, it's not a short life. You will live long. छोटा जीवन नहीं है, You want बहुत to live लंबा in जीवन होगा। misery, or अगर do you want to live when you go home? There is peace in your house. परेशानी में जीना Your चाहते हैं kids, ऐसे, your husband, your wife, you love each other, you're praying together, you're going to church, you're growing in the love of God, you're growing in godliness. Man, what an amazing life that is. या ऐसा जीवन जीना चाहते हो जब घर जाओ तो घर में शांति हो, आप पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हो, आपके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हो आप लोगों से। And it's not just for girls, for guys. सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ये बात, It's the same thing. यही बात है। If you're about to marry someone अगर who's a किसी psycho, ऐसी लड़की से शादी करने वाले जो साइको है, run now. अभी भाग जाओ। I'm telling you the truth. सच कह रहा हूँ। The Bible says it is better to go to the forest than to live with a quarrelsome wife. बाइबल कहती है जंगल में जाकर रहना बेहतर है एक झगड़ेलू पत्नी के साथ रहने से। See the early signs. May God open your eyes. जो जल्दी दिखाई देने वाले चिन्ह हैं वो समझ लो, पढ़ लो, प्रभु आपकी आंखें खोल दे। Amen. कई लोग कहते हैं हमने रेड फ्लैग देखा ही नहीं। अरे लाल समुद्र में तैर रहे थे तुम। I'm like, Lord, where are you taking this message?
But let me tell you guys, all the young people, I want to talk to you right now. सारे जवानों में अभी बात कर रहा हूँ After coming to the Lord, the most important decision of your life was knowing the Lord, getting saved. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम चुनाव था प्रभु को जानना. Can I talk? Yes, yes. Can I be candid? Yes, sir. Some girls, कुछ लड़कियां okay, वो इतना ध्यान से अपना लहंगा चुनती हैं. they pick their lehenga अगर so पति भी उतना carefully. ही ध्यान से चुनती, If you would have picked your husband so carefully as well, जितने ध्यान से वो लहंगा चुनती है कि ये भैया इसकी लाइन थोड़ा टेढ़ी है और वो पूरा टेढ़ा है जिसके लिए लहंगा बना रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है. वो लहंगा आप एक दिन पहनोगे खत्म हो जाएगा, ये टेढ़ा जिंदगी भर देखना पड़ेगा. Are you getting what I'm saying? I'm not talking about perfection, guys. मैं परफेक्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm not talking about perfection. परफेक्ट I'm talking about these red flags. मैं ये जो रेड फ्लैग्स है उसकी बात कर रहा हूँ. चेतावनियाँ. तभी बाइबल में एक्लीसियास्टिस पढ़ो, उसमें लिखा है बुद्धि चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाती है, कोई तो सुनो मेरी. It's there in your Bible. Wisdom cries out in the street ways. So चिल्ला रही है बुद्धि. Wisdom is crying out. मैं जानता हूँ एक ऐसे लड़के को, प्रभु में बढ़ रहा था बहुत अच्छा, I know a guy who was growing in the Lord. मेरे पास आ गया, Came to me. कह रहा बिल्कुल मुझे एक लड़की ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है. I'm telling you the truth. I've seen a girl who looks just like Aishwarya Rai, he said. वो कह रही है कोई बात नहीं, आप चर्च जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. She's saying, I have no problem, you go to church. कर ली शादी, Married her. उसके बाद चर्च आया, वो फिनाइल लेके खड़ी है, चर्च गया तो फिनाइल पी लूंगी. Then she's threatening to kill herself if he goes to church. Guys, I am not exaggerating it. Before God, I am saying these are all true stories. मैं बढ़ा चढ़ा और के नहीं कह रहा आज वो प्रभु में नहीं है. हूँ. And that guy is not in the Lord today. क्योंकि कहता रहा घर पे जो कलेश होता था जब चर्च आता था, उसकी वाइफ कहती थी तू जहां मर्जी वहां चला जा, तो दारू पी, शराब पी, जुआ खेल, मगर तू चर्च नहीं जाएगा. His wife would say, you drink, you gamble, do whatever, but you will not go to church. Don't waste your life. अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना. Your life is not cheap. जिंदगी सस्ती नहीं है. Jesus paid such a big price for your life. यीशु ने आपके जीवन का बहुत बड़ा दाम दिया है. And अब एक अगुवे की तरह बोलता हूँ. Now I say this as your Don't come to overseer. us. हाँ, और बोलो 15 तारीख को हमारी शादी है, ये लड़का है. If you really understand authority, अगर सच में अधिकार समझते हो, then you'll at least take counsel. तो कम से कम सलाह लोगे, काउंसिल लोगे. Because we want to, guys, in the end, we want to see you happy. अंत में हम आपको खुश देखना चाहते हैं. We want to see you happy. आपको हम खुश देखना चाहते हैं. हाँ, अंत में वो सारे आंसू पोंछ डालेगा, मगर जरूरी है ज्यादा आंसू लेके जाने ऊपर. Amen. I think I should stop now. Flow. तुम बहुत स्लो फ्लो कर रहे हो. उसकी अभी हुई नहीं है. I'm telling you, there was a daughter in this house. इस घर में एक She's my spiritual daughter. मेरी And she said, I want to marry this guy. उसने कहा मैं इस लड़के से I शादी knew this guy is alcoholic, करना- मैं जानता था लड़का abusive. शराबी है, गाली She said, देता है. I feel peace. I said, I don't feel peace and you're not marrying this guy. उसने कहा मुझे बड़ी शांति महसूस हो रही है. मैंने कहा मुझे नहीं हो रही है, तुम शादी नहीं करोगी. Thank God, I didn't let her marry that guy. प्रभु को धन्यवाद हो, मैंने उसकी शादी नहीं करने दी उस लड़के से. Praise God, she's happily married today. आज वो सुख से शादी कर चुकी है. And this guy is an alcoholic and abusive right now. और वो व्यक्ति आज भी शराबी है, अपनी बीवी को पीटता है अभी भी.
When you have the fear of the Lord, you will also honor the authority God has set over your life. जब आपके ऊपर प्रभु का भय का आत्मा है तो अपने अधिकारियों का भी आदर करोगे. You will honor your parents, you will honor the authority that God has set. आप अपने माँ बाप का आदर करोगे, उस अधिकार का आदर करोगे जो आपके ऊपर रखा गया. Amen. And I'm telling you, if you have never asked till now, go home tonight and pray and say, Father, I want the fear of the Lord in my life. और अगर आज तक नहीं मांगा है तो आज जब घर जाओ तो प्रभु से कहो, प्रभु मुझे चाहिए आपका वो भय का आत्मा अपनी जिंदगी पे. Amen. How it doesn't matter how we start this race. फर्क नहीं पड़ता कि हमने दौड़ की शुरुआत कैसी We की. have to end well. हमें अच्छे से खत्म करना है उसको पूरा. Amen. And that's why we are here to encourage one another. इसीलिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे हैं. Amen. I've told all the Pastor Ram, Pastor Sam, the families that are with me, I've told them, if you see me living a wrong life, you have full authority to speak to me. मैंने जो मेरे इर्द गिर्द परिवार है उनसे कहा है, अगर तुम देखते हो मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, तुम्हें पूरा अधिकार है मुझे सही करने का. Are there such people in our life that can speak the truth to us without us getting offended? क्या हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो बिना भय के हमसे सच कह सकते हैं कि हम नाराज़ ना हो जाएं, उनसे इस डर के मारे ना रहें? Amen? Come on guys, we need to ask for the fear of the Lord. हमें आवश्यकता है मांगने की प्रभु का वो भय. The world that you are seeing जिस is दुनिया को going आप to देख become रहे हो, more and more godless. ये और ज़्यादा ईश्वरहीन होती जाएगी. The only thing that will preserve us is not just our love for God, but our fear of the Lord. एकमात्र चीज़ जो हमें बचा करके सुरक्षित रखेगी हमारा प्रेम नहीं प्रभु के लिए, लेकिन उसका भय जो हमारे ऊपर है वो. Amen? Amen. Do you know the Bible says, do not grieve the Holy Spirit? अब जानते हैं बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को That's the शोकित मत same करो. word in relational context where a husband will do something so terrible that it will grieve his wife's heart. ये रिश्ते में इस्तेमाल किया गया वही शब्द है जब एक पति इतना कुछ खराब कर देता है जिससे उसकी पत्नी शोकित हो जाती है, दुखी हो जाती है. Do not grieve the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो. आप जानते हैं जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, एक चाय की दुकान थी छोटी सी जहाँ पे हम कुछ यंग लोग मिला करते थे, चर्च के यूथ. I was growing in the Lord and there was a tea stall where some church youth used to meet. और मैं वो सब बात कर रहे हैं और मैं इतना खुश हूँ और मैं प्रभु को कह रहा हूँ, प्रभु कितना अमेजिंग, हम सारे भाई बढ़ रहे हैं साथ And में. they were all talking and I was so happy and I was telling the Lord, I'm so happy Lord that us brothers are growing together. जब मैं सोच ही रहा हूँ उसी टाइम मुझे प्रभु का वचन आया और प्रभु ने कहा ये सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तू मुझे छोड़ के मत जाना. While I was still thinking about it, the Lord said, all these will forsake me, you do not forsake me. और वो सारे आज दुनिया में चले गए. And all of those have gone back into the एंड world. मेजॉरिटी वो था, उन्होंने उन लड़कियों से शादी करी जो प्रभु में नहीं थे. आज मंदिर जाते हैं, आज सब कुछ वो कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने they never understood the Father's heart. And majority are those who married girls that were not believers and they did not, वो उन्होंने पिता के दिल को नहीं समझा. Amen. I think the Lord is speaking to so many people. मैं मानता हूँ प्रभु बहुत से लोगों से बात कर रहा है. Please don't waste your life. कृपया अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो. Don't waste your life. अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत You करो. can make a choice. चुनाव कर सकते हो You can make your life heaven on earth or hell on earth. कि अपनी जिंदगी स्वर्ग जैसी बनानी है पृथ्वी पे या नर्क जैसी. Amen. Come on, let's stand up. अपने स्थान पर खड़े हो. Worship team, can you come? Hallelujah. 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 आप जानते हैं
जब प्रभु हमारे जीवन में नंबर 1 होगा, जब उसको हम उसके लिए हम जिएंगे, When we live for Him, when He's the number one in our life. कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। No one can take His place. मुझे याद है हम लोग मयूर विहार में थे और वहाँ पे मैं जॉब जब करता था तो सैटरडे को हमारे घर पे यंग लोग आया करते थे। I was in Mayur Vihar and I used to work, and on Saturday young people used to come to our house. और मेरे पापा का एक दिन फ़ोन आया और बोला कोई तेरे घर में नहीं आएगा, ये सब मीटिंग बंद होनी चाहिए। And one day my dad called and said, nobody will come to your house, stop all these meetings. And I said, नहीं पापा, I said, no dad, I honor you, मैं आपका आदर करता हूँ, but I cannot disobey God. पर मैं प्रभु का निरादर उसकी प्रति अनाज्ञाकारी नहीं हो सकता। और अगर उस टाइम मैंने वो नहीं किया होता, आज ये चर्च भी नहीं होता। And if at that time I would not have done that, we would not have this church today. Amen. एक बात प्रभु को बोलो कि प्रभु तू सबसे नंबर 1 है मेरे जीवन में। Tell मैं the जो Lord जीता हूँ परमेश्वर, नॉट फॉर पीपल्स ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन के लिए नहीं। Tell the मगर Lord तेरे today, opinion। Lord, you are number one in my life. I do not live for the opinion of men, but for your opinion. कब हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो, उससे बोलो प्रभु, I want the fear of the Lord in my life। उससे उसको कहो, बोलो प्रभु मुझे आपका भय अपनी जिंदगी में परमेश्वर का चाहिए। भय का आत्मा परमेश्वर में बोलता हूँ, I तेरे speak- भय का आत्मा इस समय परमेश्वर हम सब में से हर एक के ऊपर उतर आए परमेश्वर पिता। The spirit of the fear of the Lord will come upon each We one of us right need now. the spirit of the fear of the Lord in our lives। हमें आवश्यकता है उस भय के आत्मा, प्रभु We के भय के need आत्मा the की। spirit of the fear of the Lord प्रभु के भय का आत्मा हमें आवश्यकता है उसकी, so that we can walk in wisdom, ताकि हम बुद्धि में चल सके, so that it preserves our life। ताकि वो हमारे जीवनों की रक्षा करे। We will not live ungodly lives। हम ईश्वरहीन जीवन ना जिए। Come on, ask him। Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. Our heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify, purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, oh pure gold, refined as fire. Our hearts' one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Hey, I surrender all. I surrender
Savior, I surrender all. I surrender, I surrender all. I surrender, I surrender all. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all. सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। यीशुआ तुझी को मुबारक यीशु, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता तेरे लिए, सब मैं देता हूँ। यीशुआ सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक यीशु, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक ये जीवन, सब मैं देता। तुझको मुबारक ये जीवन, तुझको मुबारक ये जीवन, सब मैं देता हूँ। ओ, मांगो इससे इस समय, मांगो खुदावन से, उसको बोलो परमेश्वर मुझे अपने भय का आत्मा दे प्रभु, जो यीशु मसीह के ऊपर था। Holy Spirit, I want the manifestation of the fear of the Lord in my life. प्रभु जो मेरे कदम गलत मार्ग पर जाने लगे, तो तेरे भय का आत्मा मेरे कदमों को रोक दे खुदावन। मैं कुछ भी ऐसा ना करूं प्रभु जो तेरी नाम धराई करे। मेरे जीवन केवल तेरी महिमा के लिए खुदावन, मेरा जीवन ये शरीर केवल तेरी महिमा के लिए, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी शादी तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर। मेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए हो खुदावन। मेरी हर एक सांस तेरी महिमा के लिए हो खुदावन। That every breath that I breathe may glorify you, Lord. Let my body glorify you. Let my marriage glorify you. Let my children glorify you. Let my wealth glorify you. Let my job, my business, whatever my hand finds to do, let it glorify you. I was made for you, by you. I was made according to the good pleasure of your will. प्रार्थना करो आज, प्रार्थना करो आज, प्रार्थना करो, मांगो। The Bible says you did not choose the fear of the Lord. उसको बोलो, Lord, I choose the fear of the Lord. प्रभु मैं आज मांगता हूँ, मैं चुनता हूँ तेरी उस भय की आत्मा को खुदावन। The spirit of fear of the Lord may come upon everyone, I pray. यीशुआ तेरी आराधना
यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से भी तेरी आराधना। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो, मेरे कामों से भी तेरी आराधना, इरादों से भी तेरी आराधना, विचारों में भी तेरी आराधना हो। हे यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, मैं जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं।
तेरे आनंद से भर जाऊं, जीवन में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ Father, we ask for the beautiful and amazing fear of the Lord to come upon us. The majestic fear of the Lord to come upon us. The holy reverential fear for our Master, पवित्र भय for हमारे our स्वामी, King, for our Savior. हमारे राजा, हमारे उद्धारकर्ता। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ मेरे जीवन से यीशुआ यीशुआ, मेरी आदतों से यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ मेरे दिल के छुपे हुए मकसदों से यीशुआ, हर एक छुपे इरादे से यीशुआ, मेरे दिल में उठने बैठने वाले हर विचार से यीशु तेरी आराधना हो, मेरे जीवन से यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। I want to share something with you. हो सकता है चलते चलते आप गिर गए कहीं पे। Maybe you were walking and you stumbled and fell. आप जानते हैं साउल एक राजा था जो परमेश्वर ने चुना, You know, Saul was a king that God chose, और साउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, but God rejected Saul. और फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना, And then God chose David. और दाऊद ने भी परमेश्वर की नज़र में पाप किया, And David also sinned in the sight of God. मगर दोनों में फर्क था। But there was a difference between the two. जब परमेश्वर ने सैमुअल भविष्यद्वक्ता को भेजा साउल को कन्फ्रंट करने के लिए, When God sent Samuel the prophet to confront Saul, साउल आप जानते हैं क्या बोला? you know what Saul said? साउल ने बोला Saul said, कि ठीक है, it's okay, मगर किसी को मत बताना, but don't say this to people. किसी को मत बताना। Don't tell the people that God rejected me. साउल ज्यादा चिंता करता था कि लोग क्या कहेंगे, Saul was more concerned what people would say. और वैसे ही जब दाऊद ने सौल से कई गुना बड़ा पाप किया, And similarly, when David sinned a much greater sin than Saul, और आप देखते हैं उसके बाद जब प्रभु ने अपने भविष्यद्वक्ता नेथन को भेजा and दाऊद then के पास, when God sent Nathan to confront David, और जब नेथन ने उसको कन्फ्रंट किया when Nathan confronted David कि तूने पाप किया यहोवा के दृष्टि that you have sinned in the sight of अपने God, पूरे लोगों के सामने,
In front of all his people, वो अपने मुंह के बल फ्लैट गिर गया he fell to the ground at और his पश्चाताप करने लगा। face and started to क्योंकि वो repent. लोगों की इमेज के लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए जीता था। Because he was not living for the image of people, but for God. और for जब आप God's सॉल opinion. को आगे देखते हैं, केवल यही पाप नहीं था, उसके बाद हम देखते हैं कि वो जादू टोना करने वालों के पास चला गया And not only this, Saul then went to sorcerers and witch doctors, और उसका अंत बहुत बुरा था। and his end was terrible. मगर दाऊद यद्यपि वो गिर गया, But David, even though he fell, मगर क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता था, उसका अंत अच्छा था। but because he walked in the fear of the Lord, his end was wonderful. परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने पिताओं के साथ अपनी आयु को पूरी करके सोया। The word of God says he slept in a good old age with his I want father. to encourage you today. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आज। Maybe walking you fell in some area. शायद चलते हुए आप कहीं गिर गए किसी क्षेत्र में, Get up. उठो। That's not the last chapter of your story. वो आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर Your नहीं है। end is gonna be glorious in Jesus' आपका name. अंत महिमा से भरा होगा यीशु के नाम में। Your end is gonna be glorious. आपका अंत महिमा से भरा हुआ होगा यीशु के नाम में। Amen. आमेन। आप जानते हैं जो व्यक्ति a man who fears the Lord reverences him, keeps him in such high place. एक व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है उसको एक ऊंचा आदर का स्थान अपनी जिंदगी में देता है। You know, this man would, or this daughter or this son would think about him all the time. ये बेटी ये बेटा हमेशा उस पिता के बारे में सोचेगा, How can I bring you glory and honor? कैसे मैं आपका आदर और महिमा करूं We'll पिता। be filled with thanksgiving for what he has done. हम धन्यवादता से भरे हों जो उसने हमारे लिए किया है। You know, the fear लेकिन of the Lord प्रभु का makes भय, us to genuinely praise him. प्रभु का भय हमें सच्ची स्तुति के लिए मजबूर करता है। A person who genuinely fears the Lord वो doesn't व्यक्ति- live for the platform, for the pulpit, for the lights, but his actual worship happens behind the scenes when nobody watches. जो व्यक्ति प्रभु के भय के लिए जीता है वो प्लेटफॉर्म पुलपिट लाइटों के सामने के लिए नहीं, पर उसकी सच्ची आराधना सच्चा जीवन तब है जब कोई नहीं देख रहा There होता। are so many Christians who have destroyed themselves because they lusted for pulpit when God had not called them for ministry. बहुत से मसीहों ने अपना जीवन नाश कर लिया पुलपिट की लालसा करके जब प्रभु ने उनको सेवकाई के लिए नहीं बुलाया था। No. We don't need a pulpit to worship our God. हमें पुलपिट नहीं We चाहिए don't अपने need a परमेश्वर की mic आराधना to करने के लिए। worship our God. हमें माइक नहीं चाहिए All we परमेश्वर की need is आराधना a करने के लिए। genuine heart to worship our God. बस एक सच्चा दिल चाहिए अपने परमेश्वर की आराधना करने के And लिए। you can shut your door और आप दरवाजा and you बंद can करके worship Him. उसकी आराधना कर And when सकते you हो। worship Him, the entire heaven gives attention to your worship because it arises from a genuine heart. तब जब आप आराधना करते हो सारा स्वर्ग ध्यान देता है क्योंकि वो सच्ची आराधना आपके दिल से उठ रही है। Amen. अगर आज तक आपके जीवन में वो godly fear नहीं था, तो आज के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो godly fear If you did not have that godly fear in your life till date, then I pray you will have that fear in your life, the fear of आप God. जानते हैं बाइबल बताती है कि यूहन्ना जो चेला था वो प्रभु यीशु मसीह के गोदी में वो सर रखता था ऐसे। Bible tells us that John, the disciple, used to keep his head on Jesus' bosom. जो सबसे प्यारा था, He who was the most beloved, सबसे दुलारा था। was the most loved, cherished. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए When the Lord gave him a revelation, a तो vision, वो प्रभु के पाँव में गिर गया जैसे मर गया हो। he fell at his feet as if he died. I think that awe has to come back to church that he is the Lord of glory. प्रभु यीशु मसीह महिमा का राजा है, ये जो उसकी अहमियत है कलीसिया में वापस आना जरूरी You know, है। it breaks my heart when I see some people when the worship is happening. कोई किसी ने टांग फोल्ड कर रखी है, कोई जमाई ले रहा है. They don't understand what it means to worship God. परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ क्या है लोग नहीं समझते। It's not that we are singing some songs. ये नहीं कि हम कुछ गाने गा रहे हैं। Can you imagine you come to meet me
And I kept both my feet on the table and I'm talking to you. Yeah, tell me what's happening. आप कल्पना करें, आप मुझसे मिलने आते हैं, मैं दोनों पाँव टेबल पे रख के बोल रहा हूँ, हाँ, Even बताओ। though I have not dishonored you with my words, I dishonored you with my body posture. हालांकि मैंने आपका निरादर अपने शब्दों में तो नहीं किया, पर अपने शरीर के हाव भाव से मैंने आपका There निरादर are किया। many Christians who dishonor the Lord with their body posture बहुत से मसीह लोग हैं जो परमेश्वर का निरादर करते हैं अपने शरीर के हाव भाव से, and they don't even know it. और वो जानते भी नहीं हैं, And they will never get the favor from the king. और कभी उस राजा की तरफदारी वो नहीं पाएंगे। If you want to soar high, अगर आप ऊंचाइयों पर उड़ना चाहते you हो have to learn to lay low. तो आपको नीचा रहना सीखना होगा। जब कोई नहीं देखता When nobody watches, तब अपने कमरे में come on your knees, prostrate before the Lord. अपने घुटनों पर नतमस्तक हो जाओ परमेश्वर के सामने। Amen. The Father is searching for true worshippers, पिता सच्चे आराधकों को तलाश रहा है, not musicians. संगीतकारों को नहीं। He didn't say the Father is searching for musicians, for उसने ये नहीं कहा guitarists. परमेश्वर संगीतकारों को, keyboard players. गिटारिस्ट को, कीबोर्ड प्लेयर्स All को। this is powerful. We do this. ये सब This is good. शक्तिशाली है, हम ये सब करते हैं, अच्छा है। But the Father is looking for genuine worshippers. लेकिन पिता सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। Amen. I want to again let me take you there. I want to show you again Isaiah 11 यशायाह 11 where it says in verse 2, दूसरी आयत में जब लिखा the last line, the spirit of the knowledge and of the fear of the Lord. आखिरी में लिखा है, परमेश्वर के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यीशु मसीह के ऊपर ये सातों आत्माओं का प्रकटीकरण था. Upon Jesus was the manifestation of all these seven spirits. But of the look Lord. what he says in verse 3. तो देखो तीसरी आयत में क्या लिखा है, His delight और उसका आनंद कहाँ है? कहाँ था? Is in the fear of the Lord. प्रभु के भय में। Where did Jesus delight? यीशु को किस बात में आनंद मिलता था? In the fear of the Lord. प्रभु के भय में। He delighted in the fear of the Lord. उसने प्रभु के भय में अपना आनंद पाया। Hallelujah. You know, when we walk in the fear of the Lord, हम हमेशा इस awareness में जिएंगे, वो मेरे साथ है, हमेशा खड़ा है, मेरे अंदर है. We will always walk in this awareness that He's with us, standing with us, He's in us. आज से ये मेरी प्रार्थना है और मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया की ये प्रार्थना हो, ये मैं चाहता हूँ that we'll desire the fear of the Lord. This is my prayer and I want that my church should have this prayer कि मुझे प्रभु का भय Can I चाहिए। tell you, the true worshippers are those who fear Him, the Bible says. सच्चे आराधक वो हैं जो उसका भय मानते हैं, बाइबल कहती है, Because they adore Him, they keep Him above. क्योंकि वो उसको Everything सराहते else. हैं, हर एक चीज से ऊपर वो प्रभु को रखते हैं। Lord, I don't want to do anything. You know, पहले मुझे लगता था कि ये अनगॉडली, क्योंकि ये मेरे को परेशान करती थी ये चीज़। मेरे को एक आई वुड से आई डिडंट नो दिस, आई डिडंट हैव द रेवलेशन ऑफ दिस। मुझे बार बार ये डर सताता था कि प्रभु मैं कभी भी ना ऐसा कुछ ना करूं जो तेरा नाम को नाम धराई करे। बट नाउ आई अंडरस्टैंड दिस विल गार्ड अस। I should This is always, a healthy fear, it will guard us. I should always fear the Lord that I may never do anything which would bring shame to your name, but this is a healthy fear, अच्छा डर है जो हमें बचा के रखेगा, Amen. Because we have one life. क्योंकि एक जीवन And मिला no है। matter what has happened, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ अभी तक, I'm saying from today, मैं कह रहा हूँ आज से we can walk हम चल सकते in the हैं fear of the Lord. प्रभु के भय में। Amen. The Bible says बाइबल कहती है we walk worthy of the calling with which we were called. हम उस बुलाहट के अनुसार चलते हैं जिसके द्वारा हम बुलाए गए। I will not let the grace of God go in vain. मैं प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ जाने नहीं दूंगा।
You know, it breaks my heart. The guy who preached the gospel to me has gone back into the world. मेरा दिल टूटता है इस बात से, जिस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया था वो दुनिया में वापस चला गया। The Lord will never force anyone. प्रभु कभी जबरदस्ती Everybody नहीं has a करेगा। free will. हर एक के पास स्वेच्छा है, But it's the fear of the Lord that will protect us. पर प्रभु का भय हमें बचा के रखेगा। It's not his dread, it's not his terror. ये उसका डर या उससे भयभीत होना नहीं, It's the fear of breaking his heart. ये वो भय है कि हम उसका दिल ना दुखा दें। Come on, एक आखिरी थोड़ी देर के लिए हम वर्शिप करेंगे, फिर हम सर्विस एंड करेंगे। अपने शब्दों में हाथों को खड़ा करो इस समय, In your own words, lift और up your अपने hands शब्दों में उसकी स्तुति और आराधना करो। and worship उसको him in your own महान महिमा दो, Give him उसके great नाम को glory. उठाओ। words. Lift up his वो name. जीवित महान परमेश्वर है। He is the living Almighty God. अपने शब्दों में आपको कोई गीत नहीं चाहिए, आप आराधना का इंस्ट्रूमेंट हो। यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्शिप। आपके उठे हुए हाथ आराधना का इंस्ट्रूमेंट है। कम ऑन, ओपन योर माउथ। अपने मुंह को खोलो इस समय, अपने मुंह को खोलो और अपने शब्दों में उस महान परमेश्वर की आराधना करो। तू महान है, Father, you are mighty. I praise you, I adore you, I glorify you. पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आपके समान और कोई नहीं, आपके समान और कोई नहीं। हम उस नाम को उठाते हैं जो पवित्र है, जो जीवित है, जो सामर्थी है। मेरा वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम, मसीह यीशु का नाम, मसीह यीशु का नाम। Come on, ask him, Lord, I desire the fear of the Lord. I desire, उसको बोलो, प्रभु मैं चाहत करता हूँ कि मैं तेरे भय में जीऊँ। बाइबल कहती है यहोवा के जो डरवैये हैं उन्हें किसी भली चीज की कमी घटी ना होगी। Those who fear the Lord shall not lack anything. यहोवा के जो डरवैये हैं उनके घरों के चारों ओर उसके दूत तैनात होते हैं। अपने मुंह को खोलो इस समय, Give him the best praise you can. सबसे उत्तम आराधना उसको दो, सबसे उत्तम आराधना उसको दो। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो खुदावन, तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू महान महान सर्वशक्तिमान खुदा है, तू महान परमेश्वर है, तेरे समान और कोई नहीं। I worship you, Lord Jesus. I adore you, Lord Jesus. I glorify you, Lord Jesus. I magnify you, Lord Jesus. Oh, I worship, I worship, I worship, I worship, I adore you, glorify you, magnify you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus.
करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, तेरी महिमा गाती रहे ऐ सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी
सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। सारा आदर सारी सारा आदर सारी प्रशंसा Come on, church, worship Him. सारा आदर सारी प्रशंसा सारी स्तुति सारी तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले आदर महिमा आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा 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 आदर आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा आदर और महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले यीशुआ तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले तुझको मिले सारा आदर सारा आदर सारी प्रशंसा 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 यीशुआ सारी प्रशंसा सारा आदर सारी मेरे जीवन से सारी प्रशंसा सारा आदर सारी प्रशंसा तुझको मिले 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 Hallelujah. Come on, let's give a big praise to Jesus आइए in this बड़ी स्तुति place. प्रभु यीशु मसीह को दें। Amen. मन तो नहीं है रुकने का, Don't feel मगर like stopping. we don't want you to miss your metro. Some people, we just want to be considerate and हम लोग सोचना चाहते हैं. But remember when someone asks you, are you afraid of your God? जब कोई आपसे पूछता है कि आपने परमेश्वर से डरते हो,
Tell them we are not afraid of our God. उनसे कहो हम अपने परमेश्वर से डरते नहीं, We are afraid of breaking his heart. उसका दिल दुखाने से डरते हैं। That is the fear of the Lord. ये है प्रभु का भय मानना, That is the fear of the Lord. ये है प्रभु का भय मानना। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. Amen. जब प्रभु हमारा जीवन देखे तो वो खुशी से भर जाए। When the Lord would see our life, He would be filled with joy. उसने पहले हमारे लिए इतना दर्द सहा है। He has already suffered so much pain for us. We don't want to cause him pain. हम उसको और दुख नहीं देना We want to चाहते, cause him joy. उसको आनंद देना चाहते हैं। Amen. आमेन। जब वो आपके बारे में सोचे स्वर्ग से तो खुशी से भर जाए। When He thinks about you from heaven, He should be filled with joy. Amen, church. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are lovers of God. You are here in प्रभु a के प्रेमी हो आप cold winter evening. पूरी सर्दी की शाम, And some of you have come from so far. और कुछ लोग बहुत दूर से आए, मैं जानता हूँ। I pray God will reward you richly for this. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर असीम धन के द्वारा आपको इसका प्रतिफल दे। Amen. Hallelujah.